Hello and welcome everyone. This is my first YouTube video, and on this channel I will be covering entire science syllabus. So this is firstly today we are starting with class 7 chapter number 1, nutrition and plants. But further I will also cover the entire science syllabus for class 8, 9, 10, 11 and 12th as well. Okay. So this was about me. I love teaching actually. So yeah. Now, before we dive into the chapter, I have certain rules which I want to tell. So here it is. These are certain rules that I would want all my students to know. Firstly, pay attention. Everything will be explained. So I will explain everything to you. Okay. You just be seated, pay attention. Second, language barrier, Hindi and English. Now, see, I know that in most of the students, there are some students who do not understand Hindi, but I think English is a very common language for everyone. And so I have thought that I will be using both Hindi and English during teaching, but while I'm giving instructions right now, so I'm using English. But I am actually, I want to know about this from you people. So you comment down this below whether you want me to teach it entirely in Hindi or in English or in dual language. Okay. Third one will cover, I will cover all topics and subtopics. Entire chapter will be covered, whatever notes I'm giving you in this video. And okay, if you want notes, you also please comment down below. I'm not attaching notes right now with this video. If you will comment, I will definitely upload it. So I will cover everything. So you be assured that if you're studying from me, you will get 100 on 100 in your exam, especially in your school exams. Okay. So yeah, just be seated and pay attention. Now there's something more I've written. Now there are some students who would be preparing for exams like Olympiad. Some would be from ICSE because I will be primarily covering the syllabus of CBSE using CBSE standard books like NCERT and other books as well. But I will also, touch some interesting points that you would not be knowing and your teachers will not be teaching in class. So you will enjoy that. So if you are any Olympiad student, ICSE or any other competitive exam if you're preparing for, and if you want my help, I want me to cover some other topic which can, which is there in your exam. And yeah, so I would say that you please comment that below. I will definitely help you in whichever way I can. Fourth, notes are enough. Actually, notes are enough primarily for your exams. You revise these notes, understand the concept from me, 100 on 100. Question practice. Now, again, I want your suggestions in this. How you want us to practice questions, which kind of questions you want me to bring it for you. You want just MCQs or you want me to cover the entire exercises of NCRT or any other question? And how do you want this? Like, you want a topic to be covered and then questions or after the chapter? So please, okay, comment that below. Six, comment and give feedback. So yeah, whatever query you have regarding the above rules, please comment that below and give your feedback, whatever you want me to include more to help you out. So let's not waste further time and get back to our chapter. So our chapter number 1 is nutrition in plants and class 7. This is the chapter overview. Overall, we'll be studying this in our chapter. These are the four topics: modes of nutrition, photosynthesis, other modes of nutrition, and how nutrients are replenished in the soil. So you all be seated and okay. So I would say that I'm not going to cover all these topics in this entire video. I will cover these topics today. Rest I will be taking up in other videos. So per chapter, I'll be making around 2 to 3 videos. Okay, so that it is easy for you to also understand. And it will all the videos will be uploaded in a consistently manner daily. So yeah. So today we will learn what is nutrition, modes of nutrition, and introduction to photosynthesis. Okay. So this is the first topic. Now I will explain you a bit about this. Okay, now listen. See, we all eat food, right? Now, if I ask you a very simple question, why we eat food? So, in a very layman language, you will say to get energy. This is a very simple answer to get energy.
to do our basic activities, to study, to play, right? But if I tell you that there is something more in this particular word food, firstly, to understand that why we need food, we need to break this food. Now, this is our food. Let's say you are eating something delicious. You know what? Your food is actually divided into certain components. Can we name them? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. All these components together make up our food. And if all these components are present in adequate manner in your food, that food is called a balanced diet. I hope everyone knows. But if any of these is missing, it will lead to what? A deficiency disease. Okay. So food consists of these components, and together all these components are called nutrients. So, firstly, what is food? Food is a sum total of all these nutrients: carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals. Now, the question that I asked you, why we need food? We need food because our body needs these nutrients to carry out basic and advanced mechanisms of our body. Now, what are these mechanisms? Mechanism का मतलब होता है any process. These can be as basic as breathing. You know, you breathe in and breathe out. Do you know, children, when we breathe in, we need energy to breathe in. And the energy currency of our cell is ATP. This is a quite higher thing for, I guess, class 7 students, but you will subsequently learn these in our classes further. So I'm just introducing you. So when you breathe in, you utilize the energy. आप जब सांस लेते हो तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है, और अगर आप खाना ना खाओ, you do not take these nutrients, you cannot take ATP, you cannot breathe. So this is a very simple thing. Taking a new page. So I hope now we are clear with this term, that is nutrients. So nutrients are the components of food. Okay, all the components that I say: carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals. And why we need these nutrients? To carry out basic mechanisms of our body. We will not go into detail what all mechanisms, because अगर मैं वो बताने लग गई, so the whole day will pass. Our body does n number of functions. Okay, so nutrients. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. I just told you components of food, and any components को nutrients कहते हैं, necessary for our body. Why we need this? In very simple language, we need this to build their bodies. Now, you know, all the bodybuilders, they take a lot of protein diet to grow. It's a very simple mechanism. If I tell you, I will actually explain you in the next topic. Grow का मतलब मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझाऊंगी. To repair damaged parts. अब आप, if you sometimes, गिर जाते हैं खेलते खेलते and we bleed, वैसा तो नहीं होता, we continuously bleed for years and years, right? हमारी बॉडी हमारी स्किन को हील करती है, तो जो भी हम ये विटामिन्स और proteins खा रहे हैं, our body uses those components to heal ourselves. I hope you know, or if you don't, vitamin K is very essential for clotting of blood. अगर आपकी बॉडी में विटामिन के कम है, तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा. तो अगर आपको छोटी सी इंजरी होगी, it will lead to a massive blood loss. And you know, blood is so essential. And for your information, children, we have 5 liters of blood in our body, and which keeps on circulating in our body. यही 5 liters टोटल अमाउंट हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है. अगर आप थोड़ा सा भी ब्लड इसमें से लूज करते हो, यू स्टार्ट फीलिंग लो. Then provide the energy. तो पहली ही चीज हमने डिस्कस करी थी. So I hope this is very clear to all of us. Let's move further. What is nutrition now, children? So now nutrition और nutrients सुनने में तो बहुत सेम लगता है, बट है थोड़ा डिफरेंट. न्यूट्रिशन का मतलब क्या है ना, ये बहुत सिंपल एग्जांपल से आई विल एक्सप्लेन यू. Let's say there is a girl named Ria. Okay. Now Ria is a 5-year girl. Her mother forces her to drink milk, and she drinks. She's a very obedient child, and she drinks milk daily for the next 6 months. After that, when she visits her doctor checks and tells her that Ria,
has grown her height. Now ये तो हम सबके साथ होता है, right? Complan पीने से all that. Okay, there is no promotion of anything. I'm just giving an example. Bonvita, Complan, we all want that, right? So that our heights increase. There are supplements people take, children take, doctors give. Now, रिया ने मिल्क पिया और उससे उसकी हाइट बढ़ी. You know कैसे बढ़ी? You know how does that happen? हाइट बढ़ती कैसे है? सी बच्ची, रिया की हाइट बढ़ी है. हाइट कैसे बढ़ी है? रिया पहले इतनी थी, अब वो इतनी हो गई है. इफ यू सी, रिया के आर्म्स और लेग्स लंबे हो गए. आर्म्स और लेग्स क्या है? बोन्स. बोन्स हैव ग्रोन. रिया के बोन्स लंबे हो गए. गेट दैट? तो ये जो बोन्स लंबे हुए हैं, ये मिल्क पीने से हुए हैं, क्योंकि मिल्क हैज गिवन हर विटामिन्स एंड प्रोटीन्स एंड आल्सो सम कार्ब्स एंड एवरीथिंग. तो रिया ने न्यूट्रिएंट्स खाए, न्यूट्रिएंट से ये हुआ. सो न्यूट्रिशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग इट बाय द बॉडी फॉर सर्टेन फंक्शन. तो रिया ने मिल्क पिया और उसको यूटिलाइज किया अपनी हाइट ग्रो करने के लिए. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. सिमिलरली हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है. इवन दैट इज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन का मतलब है टेकिंग इन ऑफ फूड प्लस यूटिलाइजिंग दैट फूड, उस फूड को यूज करना. Get that? That is known as nutrition. Now, I just explained you taking in food and utilization is called nutrition. All living organisms, mind you बच्चे, living organisms में plants and animals दोनों आते हैं, require food. And अभी आप छोटे हो, but as we will grow in class 9th आपको पता चलेगा कि हमारे human beings are also included in animals. अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट. व्हाई इज इट सो? हम अपने किचन में अपना खाना बनाते हैं, माय योर मदर मेक्स देयर फूड, राइट? और यू समटाइम्स मेक मैगी. सो व्हाई इज इट सेड कि प्लांट्स मेक ओन फूड, एनिमल कैन नॉट? ये कौन से फूड की बात हो रही है? सो बच्चे, ये जो फूड है, इट्स नॉट द नॉर्मल फूड दैट यू ईट. आई एम सो सॉरी. इट इज नॉट द नॉर्मल फूड जो हम खाते हैं. ओके, बट दिस फूड इज समथिंग डिफरेंट. दिस फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज है और वो जो बाजार में ग्लूकोज आता है वो थोड़ा डिफरेंट है. कैसे वो आगे बताऊंगी, बट आप इतना याद रखना, ये नॉर्मल फूड की बात नहीं है. एक स्पेशल फूड है जो सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं, एंड पर्टिकुलरली ग्रीन प्लांट्स बना सकते हैं. कौन बना सकता है? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स बना सकते हैं. इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो हम इस चीज को आगे समझेंगे बहुत अच्छे से. Let's just move forward. I hope I'm clear with what are nutrients, what is nutrition. जितना सिंपल सेंटेंस है उतना कॉम्प्लेक्स मीनिंग है, तो बहुत अच्छे से समझना. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अभी मैंने आपको बोला कि न्यूट्रिशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड प्लस यूजिंग इट, राइट? ये है न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मैं आपको बहुत सिंपल से दोनों समझाऊंगी. ऑटोट्रॉफिक सबसे पहले, चलो हम इसी पे लिखते हैं. एंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट. अगर इसको हम क्लब करें, सो वी गेट टू नो इट मीन्स खुद से. थ्रू सेल्फ यू आर गेटिंग नरिशमेंट. कहने का मतलब, ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो होता है ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड. चलिए, मैं अभी आपको फूड की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं. For which food I'm talking about? I'm not talking about the food that is being cooked in your kitchens and you say that we make our own food. This is a special food which is called glucose, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स बना सकते हैं. और ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस से ग्लूकोज को बनाते हैं उसे हम बहुत प्यार से फोटोसिंथेसिस कहते हैं. वी विल कम व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एवरीथिंग. आप एक बहुत सिंपल सी चीज समझिए. मैं आपको एक बहुत सिंपल एनालॉजी देती हूँ. एक फार्मर है, ओके, आप अपने घर में रोटी बनाते हैं, और मदर मेक्स. रोटी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? व्हीट, राइट? वाटर, व्हीट. क्या पानी आपने बनाया है? नहीं, पानी तो यूनिवर्स बनाता है. ओशन, सीज, पानी तो यहाँ से आता है. पानी भी हमने नहीं बनाया. व्हीट, व्हीट हमने बनाया है? नहीं बच्चे. व्हीट फार्मर ग्रो करता है. पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रो करता है फार्मर.
वीट बनाता नहीं है, इट ग्रोज, इट सो अ सीड। तो वो जो सीडलिंग है, वो यूनिवर्स, वो दैट सीडलिंग फार्मर कैन नॉट मेक अ सीड, फार्मर बाइज द सीड। समझ आ रहा है आपको? यस, आजकल इतनी एडवांसमेंट्स हो गए कि लैब के अंदर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक बहुत एक प्यारा सा ब्रांच होता है बायो का, जिसे बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि आप फर्दर स्टडी करेंगे इन कमिंग, इफ यू टेक बायो इन क्लास 11 12। उसमें आपको पता चलेगा कि लेबोरेटरीज के अंदर भी हम कभी कभी प्लांट्स ग्रो करते हैं, बट माइंड दैट एक नया प्लांट बनाने के लिए आपको पिछले प्लांट के रिमेन्स चाहिए। तो हम खुद से कुछ भी नया नहीं बना रहे, विच मीन्स कि फार्मर ग्रो करता है wheat। तो ये जो वीट है, इस वीट के अंदर होता है ये स्पेशल ग्लूकोज। और दैट, अब आप बोलोगे कि सम पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, हम तो वीट नहीं खाते हैं। तो आप लोग अगर चिकन खाते हो, so if even if you eat a non-veg, you eat chicken, rabbit, duck, whatever animal you take, they are actually the food. You are not preparing them. Okay, ये खाना है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। मैंने अभी बताया था फूड इज समथिंग विच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो इनके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप खुद से इन्हें प्रिपेयर नहीं कर रहे। सो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना खाना खुद से बनाता है, और अपना खाना खुद से सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म बनाता है, दैट इज green plants. Green plants. कभी भी पूछे who are autotrophs? Only green plants. I won't say only green plants. Okay, this is also wrong. Certain bacteria plus green plants. And इसमें कुछ और भी आते हैं, but अभी आप छोटे हो तो आप बोलना सिर्फ green plants. तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब नरिशमेंट, ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक्स फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। अभी जो CO2 और वाटर है, देखो मैंने बोला ना, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके कैसे बना रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे। उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ये देखिए, दिस इज अ ग्रीन प्लांट इन फ्रंट ऑफ यू। इट मेक्स इट्स ओन फूड, इट मेक्स दैट स्पेशल ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के बड़े नाम है। इस ग्लूकोज को जब हम स्टोर कर देते हैं, उसे स्टार्च भी कहते हैं। यू नो दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, जो बहुत इजीली आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे बैठते हैं तो इस टॉपिक पे तो बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। आर ऑल प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक? मैंने आपको अभी क्या बोला? मैं जब भी ऑटोट्रॉफिक की बात बोल रही हूँ, मैंने बोला बस याद करो ग्रीन प्लांट। क्या मैंने बोला ऑल प्लांट्स? सो हेयर इज द आंसर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक, द ग्रीन प्लांट्स। एक बात याद रखना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही ऑटोट्रॉफिक होते हैं। व्हाई? बिकॉज खाना बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल पिगमेंट की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, और जो होती है ग्रीन, सिर्फ इसकी जरूरत होती है। ये ना हमारे पास है, ना ही नॉन ग्रीन प्लांट्स के पास है। अगर हमारे पास क्लोरोफिल होता तो आज हमारी स्किन का कलर ग्रीन होता, पर हमारे पास मेलानिन है, इसलिए हमारी स्किन का कलर डार्किश है। जिनके पास मेलानिन कम होता है उनकी स्किन लाइट होती है। ये तो हमने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैंने बता दिया। So most of the plants have autotrophic seed. The green plants produce food not only for themselves. अभी ग्रीन प्लांट्स है, एक ग्रास है, अभी ग्रास को एक रैबिट खाता है, और उस रैबिट को लायन खाता है। कहने का मतलब, तो ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली रैबिट का खाना है, और इनडायरेक्टली लायन का खाना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई जस्ट सेड। Green plants not only make food for themselves, they make food for non-green plants. Okay, non-green plants के लिए कैसे? ये हम parasitic plants में पढ़ेंगे। As well as for animals, animals के लिए कैसे? Herbivores eat grass, तो herbivores इन्हें खाएगा, carnivore herbivore को खाएंगे, और हम भी food chain में आते हैं, right? This is a very important. All green plants are autotrophs, true. All plants are autotrophs, false. All non-green plants are autotrophs, false. So ये है रीजन कि ये क्यों होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये आपको आंसर्स में जरूर लिख के आना है। which help them make food by absorbing energy from sunlight। ठीक है, तो जो सनलाइट वाली जो एनर्जी है, ये कैसे ही जो है एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, ये हम फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैंने आपसे बोला कि देर आर सर्टन नॉन ग्रीन प्लांट्स। आपके मन में आया होगा कि कोई नॉन ग्रीन प्लांट का मेरे को आपको एग्जाम्पल तो देना चाहिए ना। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो इन फ्रंट ऑफ यू। Attached this deliberately to bring in your notice. This is called a pitcher plant. A pitcher plant. You know what a pitcher plant is? इसकी शक्ल में मत जाना, ये ग्रीन दिखता है। Can you see these flaps? The pitcher plant is like this. ये जो इसका फ्लैप है,
बेसिकली ये इंसेक्ट खाता है। जैसे कि इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है, ये अपने इस फ्लैप को बंद कर लेता है। सो इट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ नॉन ग्रीन प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज आर ह्यूमन बींग्स ऑटोट्रॉफ्स। तो आप क्या और मैं खाना बना सकते हैं? अब तो हम सबको इसका आंसर पता है, नहीं। क्यों? बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जिसके पास क्लोरोफिल है वो अपना खाना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेशल फूड की बात कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज, विच इज मेड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो हम और आप नहीं बना सकते। हम वो फूड खाते हैं जो हमें प्लांट देता है। ठीक है, यू कैन रीड दिस। हेट्रोट्रॉफिक फूड बिल्कुल ही ऑटोट्रॉफिक का उल्टा। ऑटोट्रॉफिक खुद खाना बना देते हैं, हेट्रोट्रॉफिक दे डू नॉट मेक देयर फूड। इसके एग्जांपल्स कौन हुए? ह्यूमन बींग्स, अभी बताया। इनफैक्ट ऑल एनिमल्स, हम सब जितने भी जानवर हैं, ये देखो, रैबिट इज ईटिंग अ ग्रास, इज आल्सो। अब रैबिट को कौन खाएगा? लायन। तो जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक के और भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी, जो आप अगर समझे तो बहुत ही हायर लेवल कॉन्सेप्ट है। ये आपकी क्लासेस में नहीं डिस्कस होगा इन स्कूल, but you can know this, and obviously you can get an extra edge from your peers. So those organisms which cannot make their food by photosynthesis, important है। किचन में खाना हम सब बना सकते हैं, पर फोटोसिंथेसिस हम कर सकते हैं नहीं, तो हम हेट्रोट्रॉफिक है। टेक फूड फ्रॉम, हम कहाँ से लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और एनिमल्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बाय ईटिंग देम, बाय ईटिंग अ मीट ईटर्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक। तो इसमें कौन आता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स। अभी मैंने बताया था, पिक्चर प्लांट का एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिया था, जो एक इंसेक्ट को खाता है। एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। सी नाउ, इसमें लिखा है एग्जांपल्स हेट्रोट्रॉफ के। नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंजाई। अभी देखो, यू आर इन क्लास 7, तो आप लोगों के लिए ना फंजाई और प्लांट इज सेम थिंग। बट एज यू विल गो टू क्लास 9, आपको समझ में आएगा कि फंजाई और प्लांट बहुत अलग चीज है। आप लोग मशरूम खाते हैं, वेरी एवरीवन वुड बी नोइंग मशरूम, मैं फोटो भी लाई हूं जिसको नहीं पता। मशरूम इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। एक्चुअली यू शुड से इट्स अ फंजाई। नॉन ग्रीन प्लांट अभी बोल लो, पर एक्चुअली मशरूम को हम प्लांट नहीं फंजाई बोलते हैं। yeast पाउडर यूज करते हैं when we make छोले भटूरे और समथिंग लाइक दैट। yeast इज ऑल्सो फंजाई। ये सब एग्जाम्पल हेट्रोट्रॉफ के हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं? हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं ये। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड क्या होता है? ये ब्रेड होती है, ब्रेड जब अगर आप यू कीप इन रेफ्रिजरेटर एंड यू डोंट ईट फॉर डेज, तो उसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे। इसका प्रॉपर डायग्राम होता है। इस ब्रेड मोल्ड का दूसरा नाम होता है राइजोपस। ये भी हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। You can attend my class 8 and 9 sessions also if you are very curious to know all this. Certain bacteria. Now, this is I want to bring in light to you. What does that mean? Animals from सबको पता है, cats, dogs, and human beings. Please pay attention. Now, I am explaining you certain bacteria here. मैंने आपसे क्या बोला कि ऑटोट्रॉफ्स कौन है? ऑल ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा होते हैं सर्टन बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? जो अपना खाना बना सकते हैं, मेक देयर फूड। बट डू यू नो दीज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड वाया फोटोसिंथेसिस। पर ये जो कुछ बैक्टीरिया है ना, ये भी अपना खाना बना सकते हैं, पर फोटोसिंथेसिस से नहीं। ये बनाते हैं कीमोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट यूज होती है, कीमोसिंथेसिस के अंदर केमिकल्स यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे इन द हायर क्लासेस। तो क्वेश्चन आता है कि कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ होते हैं अलोंग विद नॉन ग्रीन प्लांट्स। इसका एग्जांपल है कीमोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया। अ गुड एग्जांपल इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, I hope this is clear. This was a higher level concept. You can skip this if you do not understand. You want me to explain it again? Please ping down below. So this I explained very well to you. Mushroom, yeast, and bread mold. Okay, just a minute. So this is a beautiful picture. This is mushroom. Mushroom का scientific name होता है agaricus, and this is a fungi. This is a Venus flytrap. अभी पीछे पिक्चर प्लांट दिखाया था ना इंसेक्टिवोरस, ये भी वैसा ही है। देखो, इसके पास ऐसे फ्लैप्स हैं एंड थॉर्न्स है। तो यहाँ पर इंसेक्ट आता है और जैसे ही आता है ये बंद कर देता है, तो ये अपना खाना नहीं बनाता। ठीक है, एंड दीज आर ऑल द एनिमल्स। एनिमल्स, तो ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक।
Last topic of the day, that is photosynthesis. So, okay, so for that, I will actually explain you here. See, let's make a beautiful plant. This is a plant, and these are the roots of the plant. I hope we all know that plant has two types of roots, tap roots and fibrous roots. We will study this. Don't worry. मैंने आपसे बोला कि दिस प्लांट इस सबसे पहले तो देखो मैंने ग्रीन बनाया है। क्यों? क्योंकि ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, राइट? एंड दे मेक देयर फूड वाया फोटोसिंथेसिस। और अब हम समझ रहे हैं कि ये खाना बनाते कैसे हैं। ऐसा कौन सा स्पेशल फूड है? तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है बहुत डिटेल में वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग दैट। बट राइट नाउ आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस के लिए देखो, वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ आई एक्सप्लेन यू। अगर आपको मैगी बनानी होती है सो यू नीड सर्टेन इंग्रेडिएंट्स। सिमिलरली प्लांट का खाना है ग्लूकोज। सो लेट्स जस्ट सी इंग्रेडिएंट्स। मैगी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मैगी, मैगी मसाला, वाटर, राइट, और एनी अदर वेजिटेबल्स इफ यू वांट। प्लांट का खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल प्लस, अब आप भी किसी पैन में तो बनाओगे ना, तो इसको भी चाहिए होती है सनलाइट। तो प्लांट का खाना बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स है जैसे मैगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मसाला, वाटर, वाटर, वेजिटेबल्स, क्लोरोफिल। अभी मैंने आपको बोला कि ग्रीन प्लांट से क्यों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल इज जस्ट लाइक मैगी मसाला। मैगी मसाला के बिना यू कैन नॉट मेक मैगी। सिमिलरली क्लोरोफिल के बिना यू कैन नॉट मेक द स्पेशल फूड। तो हमारे पास नहीं है क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन प्लांट्स के पास नहीं है क्लोरोफिल, एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो हम तो ये स्पेशल फूड नहीं बना सकते। Plants are so good, they make this glucose and they share with all of us also. Okay, तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स। अब उसके बाद आते हैं प्रोसेस। प्रोसेस तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि पहले मैगी डालनी है फिर मसाला डालना है। ठीक है, प्रोसेस वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो। बट मैं आपको प्रोडक्ट बना दे दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। अब यहाँ पर तो एक बहुत अच्छी सी मैगी बनती है, स्टीमी सी, नाइस सी। यहाँ पे जो ग्लूकोज बनता है, इसका जो प्रोडक्ट आता है, इसके अंदर बनता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कैसा दिखता है, क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। प्लस एक गैस भी निकलती है विच इज ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे स्टीम निकलती है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है। तो हमने सुना होगा ना कि ट्रीज टेक इन CO2 एंड गिव आउट ऑक्सीजन। इसका मतलब समझ आया? ट्रीज फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ये पूरा दिन अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। पूरा दिन मतलब ओनली डे। अगर क्वेश्चन आए, फोटोसिंथेसिस हैपेंस ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग, इट हैपेंस ओनली इन डे। रात में नहीं होता, क्योंकि इसको सनलाइट चाहिए। इंग्रेडिएंट्स देखो ना, सनलाइट के बिना नहीं कर सकता, तो रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। तो प्लांट जो है वो अपना CO2 देता है, ऑक्सीजन देता है फोटोसिंथेसिस के टाइम। और ये सिर्फ डे लाइट में हो सकता है क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए। रात में फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। रात में क्या होता है, प्लांट हमारी तरह जिंदा है तो वो सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं, और जब प्लांट ब्रीदिंग करता है तो वो सिर्फ, तो वो अब ऑक्सीजन यूज करेगा और CO2 निकालेगा। इसलिए कहते हैं कि रात में किसी ट्री के पास सोना नहीं चाहिए। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए हैं। एक बहुत सिंपली मैं समझाती हूँ, डे का और नाइट का। डे के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट बनाता है अपना खाना। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों होता है डे में फोटोसिंथेसिस? बिकॉज सनलाइट ही सुबह होती है, तो वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो अभी तो ट्री इज गुड। बट रात के अंदर सनलाइट नहीं होती है, तो वो सिर्फ करता है रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग, हम लोगों की तरह। और हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 निकालते हैं। दैट इज वाई यू शुड नेवर स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट। So this was a very, I think you would, most students would not be knowing the good reason for this, and I explained it today. So I said you maybe videos में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपकी क्लासेस में नहीं एक्सप्लेन होंगे। So do watch them. The process by which green plants make their own food, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। इंग्रेडिएंट्स क्या है? CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल। ये तो हमारे पास नहीं है, हम तो नहीं बना सकते इसको, और फोटोसिंथेसिस। और इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है इस इक्वेशन में, जिसको देख के बच्चे डरते हैं, बट देखो बहुत इजी है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? एयर से आई। कितनी होती है? 0.03%।
वाटर कहाँ से आता है? सॉइल से। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मैंने आपको एक प्लांट बना के दिखाया था, इसके रूट्स दिखाए थे, तो ये रूट्स पानी सोख करते हैं और इसका लीफ यहाँ से वाटर लाता है। सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है। और यहाँ इस तरफ एक प्रोडक्ट्स बनता क्या है? ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, खाना है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये एक इक्वेशन है जो सम अप करती है पूरे photosynthesis. You know, photosynthesis is a very complex process if you go in class 11th and study. बहुत डिटेल में समझाते हैं, बट आपके लिए अभी इतना काफी है. So here we have come to the end of this video. I hope you like this. If you like this, please share it and subscribe and like. And yes, आपको कोई भी डाउट हो, please comment down below. I will be reading your comments and answering to you. And yeah, so next video may we will be studying photosynthesis in very detail. All your question, doubt, query, everything will be resolved there. So yeah, thank you and have a good day.